Hello friends, today I'm going to discuss a very interesting and unique topic which affects your day-to-day life, that is mind power improvement techniques. After this presentation and discussion, you all will be able to improve your memory, your mental capabilities, your mind power, etc. Okay, so are you ready with me? Yes, sir. Yes, okay. So I welcome you all in a very fascinating and interesting world of human brain power, which is infinite. I'll start my discussion with the quote: "The mind is restless, uncontrollable, and turbulent, but by practice and detachment, it can be disciplined." This is a verse of Bhagavad Gita, that is a 35 verse of 6th chapter. It says, the mind is restless. जो मन है वो मन रेस्टलेस है, अनकंट्रोलेबल है, अनियंत्रित है, टर्बुलेंट है, परेशानी क्रिएट करने वाला है, लेकिन बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट कैन बी डिसिप्लिन। इसे अनुशासित किया जा सकता है। कैसे? प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट से। क्लियर? इस वर्स का इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकंड कोटेशन, it's my favorite quotation. Generally, I quote, and the great scientist Albert Einstein once said that only two things are infinite in the universe. The two things are infinite. First is the universe, and second is the human brain. Only two things are infinite in this world. One is the universe, which humans, the science doesn't know the extent of the universe because it is infinite. And second is the human brain. And I am not sure about the former. That Albert Einstein says that I am not sure about the former. Former means I am not sure about the universe, whether it is infinite or not. But I'm sure about one thing, that is the power of human brain, that is infinite. For that sure, it is infinite. Clear? Similarly, our mental capacities, our brain power, that is also infinite. Our memory power and all our mental capabilities, they all are infinite. Clear? It is up to us how to use. And this is very unfortunate that it is not taught in our college or school curriculum how to improve our brain power and how to improve our memory. Whereas all our intellect or all our knowledge, everything is based on the memory. If your memory is very good, if you have photogenic memory, if you are capable to learn things easily, then definitely you will achieve success in every sphere of your life. Yeah. The Lord Buddha says, there is nothing so disobedient as an indisciplined mind, and there is nothing so obedient as a disciplined mind. So, if your mind is disciplined, if your mind is in your control, then this is the most favorable condition. And if your mind is not disobedient, it is not in your control, you are not the master of your mind, then it will create so many problems for you. Your brain performs so many incredible number of tasks. Clear? We'll discuss very brief and very fast different activities and tasks performed by your brain. It controls your body temperature, blood pressure, heart rate, and breathing. Your brain accepts a flood of information through your different senses. They are like eyes, ears, nose, skin, etc. So flood of informations daily you get, and all those informations are retained in your brain. The important thing is, whenever you need to recall information, whether you are able to recall those informations or not. It handles your physical motion when you walk, when you talk, when you stand, or when you run, or when you sit. It controls all your physical motions. They all are controlled by your mind. It lets you think, dream, reason, experience motions, all reasoning, logics,
everything is controlled by your mind, your brain. All of these tasks are coordinated, controlled, and regulated by an organ that is about the size of a small cauliflower, that is your brain. Yeah. So if you want to check the size of your brain, if you join your two fists like this, if you join your two fists, then this is the size of your brain. Just bigger than the joint of your two fists. It is the size of your brain, and it is divided into two parts. One is left hemisphere and second is right hemisphere. We'll discuss. Okay, so your mind's inner working. We'll discuss power of the brain and anatomy of the brain. So first, power of your brain. The human brain is the most complex, fascinating, and powerful creation of the God. The most fascinating creation, because with this small magical box you can do so many things in your life. Your brain is more powerful than you think. Okay, the 3-pound organ of the mind, the human brain, is the most complex structure ever investigated by our science. So it is the most complex structure. It consists around 100 billion of neurons. Clear? And their interconnections, uh, it is beyond imagination how many interactions or how many interconnections they can create. So the male brain's average weight is around 1.5 kg. That is, the male brain is slightly bigger than a female brain. It is just bigger than your two fists, as I told. The average number of neurons in the brain are 100 billion. And each half of your brain controls the other half of your body. Do you know your right brain, the brain is divided into two parts. One is left hemisphere and second is right hemisphere. Your right hemisphere, that means right brain, controls the left part of your body, whereas the left part of your brain controls the right part of the body. The working of your body or your brain depends on the ability of nerve cells to communicate with each other. Your neurons communicate with each other, and that is called this communication structure is called as synapses. So your neurons talk with each other through electromagnetic signals, and then all the workings of the brain happens just due to these synapses. Many neuroscientists says that a person is able to utilize only 10% capability of the brain, whereas the 90% capability of the brain remains unutilized. But there are disputes also. Some scientists do not believe on this theory, but many neuroscientists believe in this theory, and they say a human can use only up to 10% of the brain power, whereas 90% remains idle. Some scientists have calculated that possible connection among neurons are more than the total number of atoms in the universe. That means it is beyond imagination. How many connections neurons can make? This is beyond imagination. It is infinite. It is beyond calculation. But the good thing is, in spite of these complexities of human brain, there are methods following which we can use our brain power to the maximum extent. And today we are going to discuss all those methods to utilize maximum power of your brain and to boost your memory. Anatomy of the brain will not go in detail because your brain is divided into two parts. One is cerebrum
second is cerebellum, and another is brainstem. This is the inner view of your brain. It is divided into two parts. One is left hemisphere and another is right hemisphere. So your cerebrum consists four lobes in your brain, that is frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. ये चार लोब्स होती हैं, सभी का अलग अलग काम है. एक बार बहुत फास्ट देख लेते हैं. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके. Yes, तो sir. फ्रंटल लोब देखते हैं, बहुत फास्ट देखते हैं. फ्रंटल लोब जो सेरेब्रम है, जिसे कहते हैं हमारा जो मस्तिष्क है, जो आज्ञा चक्र है, जो जो सामने का मस्तिष्क होता है सेरेब्रम. तो सेरेब्रम क्या काम करता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेरेब्रम में भी फ्रंटल लोब वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है मेमोरी फॉर्मेशन, इमोशंस क्रिएशन एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग एंड योर पर्सनालिटी फॉर्मेशन. तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चार काम होते हैं वो कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है. ऐसे ही पैरिटल लोब, तो पैरिटल लोब का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? सेंसेस, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस एंड द बॉडी, spatial awareness and perception, that is parietal lobe. ऑसिपिटल लोब का जो पीछे होता है, ऑसिपिटल लोब का मेजर काम होता है, वर्क होता है विजन. तो साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट ऑल्सो अभी तक रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी आईज आगे होती है, तो जो विजन से रिलेटेड ब्रेन पार्ट होता है दैट इज ऑसिपिटल लोब, वो बैक साइड में क्यों होता है, डिस्टेंस होता है, और नर्व्स वहाँ पे के थ्रू इंफॉर्मेशन आईज के थ्रू ब्रेन में ऑसिपिटल लोब में ट्रेवल करती है. देन ओनली वी विल बी एबल टू सी एंड हैव अ विजन. और टेम्पोरल लोब का मेजर वर्क होता है हियरिंग. बहुत सारे और भी काम होते हैं, आई एम डिस्कसिंग ओनली द बेसिक्स. क्लियर? तो हियरिंग, ये चार लोब्स हैं, जैसे विजन, लॉजिक, बैलेंस एंड हियरिंग. सेरेबेलम देखते हैं. सेरेबेलम कहते हैं ना, ये छोटा मगज होता है जो पीछे होता है, उसे बोलते हैं सेरेबेलम. Cerebellum basically performs the movement of our body. It performs the movement of our body. Therefore, it controls memory movement. Clear? So, due to cerebellum, we are able to balance our body. We are able to run. We are able to walk. We are able to control our entire body. This is the basic work of this cerebellum. Then the brainstem. It is said that your brain is the flower of brainstem or medulla oblongata. So it is a flower of medulla oblongata. तो brainstem क्या वर्क परफॉर्म करता है? देखो, सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो भी सबकॉन्शियस वर्क होते हैं, जैसे हमारे आईज का मूवमेंट, जैसे जो हेमिस्फीयर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन. देन it regulates our breathing, heartbeat and blood flow even when we are sleeping, when we are not in sense. Then also this brainstem controls our breathing, our heartbeat and our blood flow, all these. Clear? और जो ब्रेन है, ब्रेन में जो एक सेल होता है, उस सेल को, ब्रेन सेल को बोलते हैं न्यूरॉन. ऐसे कितने न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ऑन एन एवरेज. टू स्टे हेल्दी, न्यूरॉन्स मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैरी आउट मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर देमसेल्फ. तो ये एक इनसाइड व्यू है, कलर्ड इमेज है न्यूरॉन्स की. दे टॉक विद ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो उनके थ्रू ये आपस में बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं. देन ओनली वी आर एबल टू रीजन, वी आर एबल टू थिंक, वी आर एबल टू create logics, we are able to memorize things. Clear? ये एक न्यूरॉन का इनसाइड व्यू है. ये न्यूरॉन्स हैं एंड दे टॉक टू ईच अदर थ्रू सिनेप्सिस और डेंड्राइट. ये एक्शन है, नॉट memory improvement techniques. Now from here our discussion starts, which is related with memory improvement techniques. देखते हैं.
basically how our memory works. To improve your memory, you all need to know how memory works. memory वर्क कैसे करती है, कैसे फॉर्मेशन होता है. हमारा जो ब्रेन है उसकी मेमोरी किसी लाइब्रेरी की तरह तो है नहीं. क्लियर? किसी हार्ड डिस्क की तरह तो है नहीं. ठीक है. तो मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होता है? इफ यू नो हाउ आवर ब्रेन क्रिएट्स मेमोरी, हाउ मेमोरी इज फॉर्म्ड और हाउ मेमोरी वर्क्स, देन you will be able to improve your memory or your brain power or your mind power. क्लियर? तो देखते हैं कि मेमोरी कैसे वर्क करती है. ओके, चलो बताओ, आर यू ऑल इंटरेस्टेड टू नो हाउ द मेमोरी वर्क्स एंड हाउ टू improve your memory power? Tell me. Yes, sir. Yes, all of you? All of you are interested to know? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, okay, very good. देखते हैं. तो मेमोरी कैसे काम करती है? द मेमोरी इज नॉट फाउंड इन एनी वन प्लेस ऑफ आवर ब्रेन. ऐसा नहीं होता कि किसी एक जगह पे मेमोरी है ना, कि यहाँ पे मेमोरी है. पूरा जो ब्रेन है, पूरे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो एक कंपोजिट तरीके से मेमोरी का फॉर्मेशन करते हैं. और मेमोरी क्रिएट कैसे होती है? जब भी कोई चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी हमारे सेंसेस के थ्रू, चाहे आइज के थ्रू या स्किन के थ्रू या नोज के थ्रू, किसी भी ईयर्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है, हमारे ब्रेन में आती है, तो ब्रेन में एक स्पेसिफिक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. और जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, फिर जब हमें वो मेमोरी रिकॉल करनी होती है, तो वही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, देन वी आर एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. ठीक है, देखते हैं. मेमोरी एक्चुअली फंक्शंस लाइक अ वेब लाइक पैटर्न स्कैटर्ड थ्रू आउट द ब्रेन. तो जो वेब लाइक पैटर्न, जैसे वेब होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेस पे हैं, तो ऐसे ही मेमोरी हमारे ब्रेन में फॉर्म होती है. और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल फिनोमिना. मेमोरी इज एन इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल फिनोमिना विद इट्स रूट्स इन अवर डिफरेंट सेंसेस. रूट्स डिफरेंट सेंसेस में, क्योंकि ब्रेन में कुछ भी रजिस्टर होता है, इंफॉर्मेशन आती है, तो कहाँ से आती है? वो किसी ना किसी हमारे सेंस से आती है. दैट मीन्स हम टच करते हैं तो फील आता है, हम कुछ देखते हैं आइज के थ्रू तो वो रजिस्टर होता है, हम कुछ सुनते हैं ईयर्स के थ्रू तो वो ब्रेन में रजिस्टर होता है, हम कुछ टेस्ट करते हैं टंग के थ्रू तो वो रजिस्टर होता है. तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू आते हैं. और ब्रेन में जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी हम लर्न करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए सिक्स्थ सेंस. Many researchers believe that memory are recorded by electricity. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जब फॉर्म होते हैं तो उनके थ्रू हमारी मेमोरी फॉर्मेशन होती है. नर्व सेल्स कनेक्ट विद ईच नर्व सेल एट अ जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस. जैसे हमने देखा था, सिनेप्सिस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स, और जहां वो कनेक्शन होते हैं वहीं पे वो एक दूसरे से बात करते हैं. अगर बहुत मैग्नीफाइड किया जाए तो चिटर पिटर ऐसे ऐसे साउंड जनरेट होता है. All cells fire electrical signals to each other across these junctions, which release the brain chemicals. और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स एक दूसरे से, और वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनसे ब्रेन केमिकल जनरेट होता है. These wispy tips of the brain cells that receive these electrical impulses, the dendrite, play an important role in the memory. Memory occurs as a result of functions changes in synapses and dendrites. ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ब्रूनो फ्रॉस्ट, जिन्होंने 50 फेरी टेल्स और बहुत फेमस सीरीज के ऑथर हैं, फेमस ऑथर हैं, उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही. वो क्या कहा? ऑन एन एवरेज वी रिमेंबर, हाउ वी रिमेंबर, 25% ऑफ व्हाट वी रीड. इफ यू ओनली रीड, देन यू आर एबल टू लर्न ओनली 25%. इफ यू हियर ऑल्सो, read and hear, then you are able to learn 35%. If you read, hear and see, then you are 50% able to learn. If you involve your communication also, then you are able to learn 60%. And if you act also on a particular thing, then you are able to learn 75%. And if you simultaneously do all those things, that means you read, you hear, you say, you act, you involve all your senses, you involve all your gestures and postures, then you are able to learn 95% portion. What
it is related with any field of life, whether it is a dance or it is a reading or it is a classroom teaching or it is a game, wherever, whenever, whatever you want to learn, कुछ भी आप जो सीखना चाहते हैं, अगर तो आप अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी जो लर्निंग होती है वो लर्निंग 95% तक होती है। रादर अगर आप एक एक सेंस को इन्वॉल्व करेंगे, केवल आप पढ़ रहे हैं या केवल आप सुन रहे हैं या केवल देख रहे हैं, पूरे तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपकी जो लर्निंग है वो कंपैरेटिवली कम रहती है। तो एक फर्स्ट लेसन तो ये है, अगर आपको लर्न करना है कुछ भी, वट एवर, वेयर एवर, रिलेटेड विद एनी स्फेयर ऑफ योर लाइफ, okay, so So good afternoon. very good afternoon. Am I audible? Yes, sir. There was a disruption in connection. Okay, so there are 3 R's of memory formation. What are those R? First is retention. Retention is very important. Retention means, ध्यान से देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कभी ना कभी तो आपके ब्रेन में आएगी ना, यस और नो? Yes, sir. यस, जैसे ध्यान से देखो, आप अगर याद करो 10 years ago, if you traveled in a train, then you met with so many people, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, क्या वो लोग याद हैं, उनके नाम याद हैं या उनकी शक्लें याद हैं? No, sir. नहीं याद हैं, है ना? वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होंगे जो जो बिल्कुल याद नहीं है। आप कॉलेज डेली जाते हैं, तो डेली जाते हैं तो बस में विंडो से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें सारी हर दिन की याद हैं क्या? सारी बातें तो याद नहीं होंगी ना? No, sir. यस, सो व्हाट हैपेंस, जो मेमोरी है, मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कर्सरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कर्सरी मेमोरी क्या होती है? कर्सरी मेमोरी, जैसे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हजारों सीन्स हमें दिख रहे हैं और वो हम उन्हें देखते जा रहे हैं। कर्सरी मेमोरी, ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, हम भूल गए। सेकंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ मेमोरी जो कुछ समय तक रहती है, जैसे ट्रेन में हमें कुछ लोग मिले जिनसे हमारी फ्रेंडशिप हुई और 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 15 डेज, 1 मंथ तक वो हमें याद रहे और उसके बाद हम भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी होती है जैसे आपके बचपन, चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड जो पूरी लाइफ याद है, वो ऐसा नहीं होता कि कुछ दिन बाद भूल गए। जैसे बहुत बेसिक बातें, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD, तो वो याद हैं तो याद है, लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो क्या, मेमोरी फॉर्मेशन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द सेंसरी मेमोरी, जो बस सामने आया तो याद, सामने से हटा तो गया। दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कुछ समय तक याद रहता है। और थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस 3 आर्स पे डिपेंड करता है। पहला आर क्या है? पहला आर देखते हैं, रिटेंशन में सेकंड आर। फर्स्ट आर इज रजिस्टर, ओके। Registration. So first R is registration. Registration means
आपके ब्रेन में जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसका फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बिगिंस विद रजिस्टरिंग द इंफॉर्मेशन बाय परसेप्शन। जैसे ही आप किसी को सेंस करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो वो रजिस्टर होती है। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन अगर रजिस्टर ही ना हो तो क्या वो मेमोरी में फॉर्मेशन होगा? क्या वो लर्न होगा? बताओ, जैसे क्लास में आप थे, आपने लेक्चर सुना ही नहीं, तो क्या वो लर्न होगा? नो सर। नो। जैसे, वेरी गुड, जैसे एक बुक में से 5 पेजेस आपने पढ़े ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो क्या वो लर्न होगा? नो। किसी प्लेस पे आप कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं, वो प्लेस सुना ही नहीं, तो क्या वो लर्न होगा? नहीं होगा ना? बताओ, लर्न होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर। कोई भी इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए मेमोरी में वो रजिस्टर होना चाहिए। द डाटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी विच इज लिमिटेड। तो वो पहले स्टोर कहाँ होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। फिर कई रीजंस होते हैं जिनके बाद अगर वो सारे एक्टिविटीज हों तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर होता है। वो हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में कैसे होता है। It will fail to if we fail to register any data in the beginning, it is not possible to store or recall। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई इंफॉर्मेशन रजिस्टर ही नहीं हुई ब्रेन में तो उसे रिकॉल करना पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो जो 3 आवर्स ऑफ मेमोरी हैं उनमें सेकेंड आर इज रिटेंशन। अगर रजिस्टर हो गई कोई इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे ब्रेन में रिटेन होती है कि नहीं। अगर वो ब्रेन में रिटेन होती है तो फिर हम उसे रिकॉल भी कर सकते हैं, दैट इज थर्ड आर। तो रिटेन करना जरूरी है। अब रिटेन कैसे होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, रजिस्टर तो हो गया, बहुत सारे हमने क्लासेस लिए, लेक्चर सुने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो रजिस्टर तो हो रहा है सब, लेकिन क्या वो ब्रेन में रिटेन हो रहा है कि नहीं? तो ब्रेन की ऐसी पावर है, हम आगे देखेंगे, ब्रेन में सब कुछ रिटेन होता है। योर ब्रेन नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग इन योर लाइफ। हमारा जो ब्रेन है वो कुछ भी भूलता नहीं है। रिटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी रजिस्टर हो गया वो रिटेन ही रहता है। क्लियर? तो रिटेन कैसे करना है वो हम देखेंगे, रिवीजन, एसोसिएशन, इंटरेस्ट। तो रिटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है और ब्रेन ऑटोमेटिकली रिटेन करता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? तो प्रॉब्लम होती है थर्ड आर में, और वो थर्ड आर क्या है? रिकॉल। जब जरूरत होती है, जो रिटेन किया हुआ है ब्रेन में, जब जरूरत होती है तभी वो याद नहीं आता। बस ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? रजिस्टर करने में। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है? बताओ। आप क्लास में बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो सब रजिस्टर हो रहा है, यस और नो? यस सर। है ना? रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटेन करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन का काम है। जो भी रजिस्टर हो गया ब्रेन में वो रिटेन रहेगा, वो रिटेन करता है ब्रेन। हम आगे देखेंगे ब्रेन की ये कैपेसिटी अनलिमिटेड रिटेंशन कैपेसिटी है, ऑटोमेटिकली ब्रेन रिटेन करता है। रिटेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम है रिकॉल में। रिकॉल क्या होता है? जब आपको जरूरत है तब याद नहीं आता। अगर आपको याद करना चाहते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में याद नहीं आता, कुछ तो याद आता है, कुछ याद नहीं आता, और एग्जाम के बाहर कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम के बाहर निकलते ही याद आ जाता है, होता है कि नहीं? कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आ रहा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते ही याद आ जाता है, या घर पे बैठ के याद आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बताओ। हेलो? तो रिकॉल देखते हैं। Our brain is like a huge library where trillions of informations are stored in haphazard manner. If you want to recall any information, you have two ways. तो अगर कोई information को recall करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है कि यूजर कैटलॉग, जैसे लाइब्रेरी में होता है वैसे ही कैटलॉग अगर होती ब्रेन में तब तो बहुत ही आसान था। कैटलॉग को देखते, जैसे लाइब्रेरी में हम बुक सर्च करते हैं वैसे ही कैटलॉग देखते और ब्रेन में इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते, लेकिन कैटलॉग तो कोई होता नहीं है ब्रेन का। दूसरा तरीका है ट्रेस ऑल द इंफॉर्मेशन बाय वन। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कैटलॉग नहीं है तो वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करें, और अगर वन बाय वन इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा।
दूसरा, हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन में कहाँ है, किस जगह पे है। तो ये जो दो तरीके हैं जैसे हम लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि मेमोरी को इम्प्रूव करने के फिर क्या तरीके हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं वो देखेंगे और फिर स्पेसिफिक वेज देखेंगे। क्लियर? पहला है पे अटेंशन टू गेट राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरी फास्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें सेकेंड पार्ट में। यस और नो? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो कुछ आइडियल कंडीशंस रिकॉलिंग के लिए। रिकॉलिंग कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो कहाँ है, रिकॉलिंग में ही है। इंफॉर्मेशन जब भी हमें चाहिए तभी याद आ जाए, तो ये दैट इज कॉल्ड एज रिकॉलिंग। एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं और हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वही याद आ जाए, उसी समय याद आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉलिंग। तो रिकॉलिंग को कैसे इंप्रूव करें? जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू है एंड वी आर इन द इंटरव्यू हॉल, और हम इंटरव्यू दे रहे हैं और उस समय पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वही इंफॉर्मेशन उसी समय याद आ जाए। तो ये कैसे करें, क्वेश्चन ये है। क्लियर? तो रिकॉलिंग को इम्प्रूव कैसे करें, उसके कुछ टिप्स हैं। पहला, पे अटेंशन टू गेट राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एनी इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड यू वांट टू रिटेन एंड रिकॉल इट, तो पहले ही उस पर अटेंशन दो। अटेंटिव तरीके से अगर आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो अगर अटेंटिव तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उसके रिटेन होने और रिकॉल होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। फिर क्या, ट्राई टू, अगर स्टडी की बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन क्रिस्टल क्लियर मैनर। जो कंसेप्ट हैं उन्हें फजी या उन्हें कंफ्यूजिंग तरीके से नहीं, उन्हें बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से ग्रास्प करें। जो भी कंसेप्ट जो भी क्रिस्टल क्लियर है, जो भी क्लैरिटी है, वो रिकॉल होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। बी सेलेक्टिव। क्या करें, अपने ब्रेन को, डोंट ब्रेक योर ब्रेन लाइक अ डस्टबिन। ये हम क्या करते हैं, जनरली वी डू दिस। क्या करते हैं, हम कुछ भी माउथ में इनटेक करते हैं और वो खराब है, तीखा है, गर्म है ज़्यादा, और माउथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सो व्हाट वी डू, वी गल्प इट इन द स्टोमक, तो उसे हम पेट में ले जाते हैं। वी यूज अवर स्टोमक लाइक अ डस्टबिन। सिमिलरली वी यूज अवर ब्रेन लाइक अ डस्टबिन। कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है, एनी फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन इट और नॉट, वेदर इट इज रिलेटेड विद अस और नॉट, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, what we do, we receive every information. So what we do, we make our brain like a dustbin. So don't make your brain like a dustbin. Only retain, only register those information in which you are interested. तो जो भी फालतू का फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, कचरा है, उस कचरे को अपने ब्रेन में जाने ही ना दें। जाने नहीं देंगे तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो नहीं होगा,